ashes symbolized humility. جو خاک ہے راکھ ہے وہ خاک ساری اور فروتنی کی علامت ہے. یرمیا 6 باب 26 آیت میں لکھا ہے اے میری بنت قوم ٹاٹ اوڑ اور راکھ میں لیٹ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوح کر کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا. اے میری بنت قوم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو تھا پیپل آف جیوڈا جو یہودیہ کے ایریے میں تھے اس کو خدا نے اپنی بیٹی کہا ہے, ڈاٹر, بنت قوم, اور اس کے ساتھ کوننٹ ریلیشن شپ ہے. گاڈ اینڈ اسرائیل کے ساتھ کوننٹ ریلیشن شپ ہے. اس لیے لکھا ہے ٹاٹ اوڑ راکھ میں لیٹ, رول ان ایشز. دیکھیں ذرا, صرف ماتھے پہ نہیں لگانے. پچھلے حوالہ جات میں کیا راکھ پر بیٹھے ہیں, پھر دیکھا راکھ پر لیٹے ہیں, اب کیا دیکھ رہے ہیں راکھ پر رول ہونا ہے, اپنی سائڈیں چینج کرنی ہے راکھ پہ. مین راکھ صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں پورے بدن پر, کیونکہ اس کی علامت جو ہے وہ فروتنی ہے, جو 5واں ہمارا پوائنٹ ہے. اور اپنے کلوتوں پر ماتم اور دل خراش نہ کر کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا. اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نہ کر, مورن ود بیٹر ویلنگ. ایسا رو اپنے خداوند کے سامنے. ایک شخص نے مجھے کال کی کہ ہمیں تھوڑا برا لگتا ہے ہماری بہو جب دعا کرتی ہے تو وہ روتی ہے. تو میں نے کہا اچھا کرتی ہے, میں تو اسی تنگ کر دیں دو تاں روندی ہونی ہے. نہیں ہنسی تو نہیں تنگ کر دے, سانو تھوڑا برا لگتا ہے کہ وہ روندی ہے. یہاں پہ لکھا ہے اپنے کلوتوں پر ماتم اور دل خراش نہ کر. کلوتوں پر ماتم کیوں؟ مورن ود bitter wailing as for the loss of only son. جو اس کا ترجمہ ہے رو اس طرح کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی مر جائے. اکلوتوں پہ ماتم کا یہ نہیں کہ اکلوتوں پہ ماتم کرنا ہے, تیرا رونا خدا کے حضور اس طرح کا ہو کہ اگر تیرا ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی تیری جائیداد ہے, جائیداد کا مالک ایک ہی ہے, تو وہ اس کے مر جانے سے کوئی اور اس کا مالک ہو جائے گا. ایک ہی تیرا بیٹا ہے, آپ کے خاندان کی نسل رک جائے گی. ایک ہی بیٹا, جس کا ایک ہی بیٹا, اس کا رونا فرق ہوگا. تو اس طرح رو, اس طرح چلا اپنے خدا کے سامنے. اگر خاندان چلا گیا ہے, اگر ویلتھ چلی گئی ہے, اگر سکنس ہے, تو پھر راکھ پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس اکلوتوں کی طرح ماتم کر, دل خراش نوحہ کر, bitter wailing. ایسی باتیں خدا کے حضور اس قدر تو ویلنگ کر, آہ نالا کر, گریہ آزاری کر, کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا. اور اب یہ یرمیا نے لکھا اپنی کتاب میں, غارت گر آئے گا. اب اس کے بعد جب دانیل آیا ہے, اس نے ساری کتابوں کی ریسرچ کی کہ یہ غارت گر کیا آئے گا. اور پھر دانیل نے کیا کہا, لکھیے سنیے ذرا. اور جب اس نے حساب لگایا کہ 70 سال تک جو ہے اسرائیل قوم اسیری میں چلی جائے گی, یروشلم تباہ ہو جائے گا, ہیکل برباد ہو جائے گی, اور 70 ایئر تک جو جوش ہیں اسیری میں جائیں گے. تو جب دانیل نے یہ ساری کتابوں میں پروفیسیز دیکھیں تو اس نے کیا لکھا, دانیل 9 باب 30 سے 5. اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اگین اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. ایک چیز سے نہیں, دعا کریے جی. اسی دعا کی آپ ہی کر دینے دوجیاں کو کرانے ہیں جی, انہوں نے ہر مہینے تنخواہ دینے ہیں. تسی بھی کرے ہو دعا, تسی بھی کرے ہو. یہ میں اس سال سے شروع سے کہہ رہا ہوں, آپ کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں, خود خدا کے حضور جائیے. خدا کا روح میں, اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے, دانیل نے جب پڑھا, کتابیں دیکھیں,
तो वहां लिखा कि उसने लिखा है, बिनते कौम टाट ओढ़ राख में लेट, अकलौते पर मातम दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारत गर हम पर अचानक आएगा। तो दानियल ने देखा कि ये क्या वाकया होने वाला है, तो उसने क्या किया, खुदावंद की तरफ रुख किया और मिन्नत और मुनाजात की। क्या करके? रोजा रखकर। कभी भी रोजा आप रख सकते हैं। वेल्थ का इशू है, रोजा रखें। हेल्थ का इशू है, रोजा रखें। फैमिली का इशू है, रोजा रखें। और रोजा रखकर टाटोड़ कर राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, क्या खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। इस शख्स ने भी देखा है कि मेरी कौम जो है असीर हो जाने वाली है फ्यूचर में, और उसने क्या किया है, रोजा रखा है, टाट ओढ़ा है, राख पर बैठा है। और लिखा है, इकरार क्या करना है, ये मेरे और आपके लिए भी है। 5वीं आयत में है, हमने गुनाह किया। कन्फेशन। दुआ में अगर कन्फेशन नहीं है वो कंप्लीट नहीं है। कन्फेशन की है, हमने गुनाह किया है, हम बरगश्ता हो गए हैं, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे हकाम और आइन को तर्क कर दिया और तेरे खिदमत गुजार नबियों के कलाम को रद्द किया। कलाम सुनाया जाता है लेकिन मर्जी हम अपनी करते हैं। आप रद्द कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आपको शिफा मिले, आपका खानदान ठीक रहे, या आपको वेल्थ मिले। यहां पर इसने ये कहा है, जब यिर्मयाह ने लिखा है और दानियल ने इस किताबों में पढ़ा है, और दानियल बैठ गया है, उसने रोजा रखा है, उसने टाट ओढ़ा है और लिखा है राख पर बैठ गया है, और उसने इस बात का इकरार किया है जो मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। खुदावंद, हमने तेरा गुनाह किया है, हमने बदी की है, हमने बदकारी की है, हमने शरारत की है, हमने बगावत की है, हम बरगश्ता हुए हैं और हमने तेरा हुक्म जो तेरे हैं उनका इनकार किया है, तेरे हकाम जो हैं, आइन जो हैं, उनको तर्क किया है, और तेरे खिदमत गुजार नबियों ने जो कलाम सुनाया था हमने उसको रद्द किया है। लेकिन यकूब 4 बाब 7 से 10वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। अगर मैं और आप हेल्थ पे, वेल्थ पे, खानदान पे कंट्रोल चाहते हैं, ये सबको करना होगा, नॉट ओनली वन पर्सन। वैसे पुराने अहदनामा में जो आदमी होता था वो घर का प्रीस्ट होता था। जिस खानदान में आदमी लेजी है प्रेयर करने में, कलाम पढ़ने में, दुआ करने में, चर्च जाने में, उस घर के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ने यह सिस्टम क्रिएट किया हुआ है और हम उसको रद्द किए हुए दुआ करो जी, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मुझे तो यह दुआ कर दे क्यों? यहां पर बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा बड़ा रहम दिल है, खुदा बड़ा मेहरबान है। इस आयत को कहां पे फिट करेंगे आप? खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। ये तो कंडीशन है। अगर मैं और आप हजूरी से बाहर हैं तो फिर भूल जाइएगा कि वेल्थ, हेल्थ और फैमिली, ये तीनों चीजें फिक्स हो सकती हैं। राख पर बैठने के लिए पहली बात है खुदा के ताबे हो जाना, सबमिशन में आ जाना, और फिर मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। प्योरीफाई योर हार्ट्स, यू डबल माइंडेड।
नहीं ये नहीं, ये कर लेते हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं। आपका फैसला अटल होना चाहिए, आपने क्या करना है। 2 दिलों, अपने दिलों को पाक करो। लिखा आगे, अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। अगर इश्यूज हैं तो फिर मुझे और आपको खुदा के ताबे हो जाने की जरूरत है। और लिखा है, तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाए। अगर वेल्थ चली गई है, अगर हेल्थ जाती जा रही है, और अगर फैमिली जाती जा रही है, तो फिर क्या है, तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाए, तुम्हारी खुशी उदासी में। क्योंकि खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो। हम्बल योर सेल्फ बिफोर द लॉर्ड। खुदा के सामने हम्बल हो जाओ। और लिखा है, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। ही विल लिफ्ट यू अप इन ऑनर। खुदा के हुजूर फरोतन हो जाओ, खाकसार हो जाओ। राख जो ओल्ड टेस्टामेंट में थी, उसका मतलब यही था, अपने आप को खाकसार करना, अपने आप को छोटा करना, आहो नाला की रंजो गम की ये शनाख्त थी। और लिखा है, खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो, उसके सामने हम्बल हो जाओ, उसके सामने अपने आप को सबमिट करो। तो लिखा है, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। क्योंकि राख जो है, ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी इस पे बैठते, इसको सर पे डालते, इसमें लेटते, उसका यही मतलब था, तौबा की अलामत थी। मैं राख में तौबा करता हूं। राख मातम की अलामत थी। राख फना पजीरी की अलामत थी कि मैं कुछ भी नहीं हूं। राख गम और रंज की अलामत थी। राख फरोतनी की अलामत थी। खुदावंद के सामने फरोतनी करो तो वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। मैं और आप अगर अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं हैं। मुझे और आपको पाकरू की मदद चाहिए, पाकरू का सहारा चाहिए। मैं और आप अगर पाकरू को अपने साथ लेकर कमरे में अकेले उसके हुजूर गिरते हैं, कोई भी इशू है उसके सामने लाइएगा। वो जिंदा खुदा है। आपकी चाहे हेल्थ का इशू है, फैमिली का इशू है, वेल्थ का इशू है, वो खुदा परवरदिगार है। हर चीज़ को उसने बनाया, इवन आपको भी उसी ने बनाया है। जब आप उसके हुजूर गड़गड़ाएंगे, आहो नाला करेंगे, सोग करेंगे, मातम करेंगे, तो वो हमारी दुआओं को सुनकर जवाब देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बात है। आमीन।